Diversity is the school of all greatness, and it carries with itself a seed of equivalent advantage. मेरे ही पेरेंट्स क्यों मेरे पेरेंट्स नहीं सुन सकते? While we were growing up, हमें थोड़ी बहुत जो है pity और वो जो एक सिंपैथी है लोग अक्सर आपको देने की कोशिश करते हैं। बचपन से हमारे ऊपर एक लेबल लगाया जाता है कि वी आर इंटरप्रेटर्स, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सारी चीज़ों को अपनी ट्रेजेडी को कॉमेडी में कन्वर्ट कर देता था। लोगों का कहना, बेचारा कहना। There were instances कि जिसमें आप ना काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हो। We could have both experiences, good and bad as well. अगर आपने फलानी चीज़ कहनी हो अपने पेरेंट्स को तो आप ये कैसे कहते हैं? They said जब भी डेफ पेरेंट्स के घर में बच्चा होता है और वो बच्चा सुन सकता है, तो वो ये नहीं कहते कि हमारा बच्चा सुन सकता है, वो कहता है हमारे घर के अंदर इंटरप्रेटर पैदा हो। It carries some extra burden for sure. Like there is no doubt about that. और कोई भी कोडास की मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करता। मेरी जिंदगी का पेन पॉइंट था, कोडास की जिंदगी का पेन पॉइंट था, डेफ लोगों की भी जिंदगी का पेन पॉइंट था। सो आई थिंक हम सब अपना रोल अब प्ले कर रहे हैं सोसाइटी में। I usually talk about this awakening. So it's a movement, right? You are a part of this movement, Saad, because you have been working for the deaf people for so long, and then you wrote a book. You're trying to book deaf लोगों तक पहुंचे. You're doing these podcasts. So the goal is to be a vessel of goodness where a lot of people can relate to you. What are the perks of being a coda? I hope you can relate to it. Parent teacher meeting पे हमने इसका parent teacher meeting पे हमने इसका बहुत फायदा उठाया. People often get wrong about deaf adults. They're actually very smart. Okay, you're missing up. ये बात कुछ और है और तुम मुझे बता कुछ रहे. And they feel isolated. They feel left out. So लोगों को शायद लगता है कि maybe they are deprived. Yes, they are in one way they are deprived of something, but it does not make them any lesser human being. वो frustrated नहीं है, वो human connection से deprived है. And we have the onus and responsibility of changing that. You have found your calling और आपको जो है you need to pursue this thing. I always say that Allah put this in my heart 100%. What more can I do for this community? Looking at suffering with the right approach or with the right perspective. Look out for support system. You're not alone in this journey. I think sign language is so beautiful. Yeah. That was one of the most defining moments for me. Maybe they can also become the next Azima. To all the kodas out there, it's not only becoming a Zima, it's becoming Saad, it's becoming your elder siblings, it's becoming your parents. कहते हैं adversity is the school of all greatness and it carries with itself a seed of equivalent advantage. आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं, मेरी तरह वो भी चाइल्ड ऑफ डेफ एडल्ट्स हैं जिन्होंने अपने एडवर्सिटी को अपने पर्पस में कन्वर्ट किया। कनेक्ट हेयर एक इदारा है जिसकी ये को फाउंडर भी हैं। शी इज़ ऑल्सो अ सोशल एंटरप्रेन्योर। मेरे साथ मौजूद हैं अजीमा धांजी। अस्सलाम वालेकुम अजीमा। वालेकुम अस्सलाम साद, कैसे हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm good. Thank you so much for having me here. Thank you so much. I know Azima you have a very tight schedule, लेकिन टाइम निकालने के लिए बहुत शुक्रिया आपका. Thank you so much. Of course. So Azima, first thing first, do you agree with what I just said कि every adversity carries with itself a seed of equivalent advantage? और आपने अपनी इस जर्नी में आप अपने पर्सपेक्टिव को किस तरह रिफ्रेम करती हैं for turning your pain into purpose? How do you go about this whole thing? Absolutely. I think for a child of deaf adult, for myself, this has always been my identity, and this has always helped me stand out in any room I walked into. It was something that was different about me since I was a child in a classroom, that I knew sign language. It was like a superpower. And being a child of deaf adult, I'm sure you agree with me साथ कि हम लोग दुनिया को देखते ही एक different नज़रिए से हैं। Although हमारे अंदर कोई disability नहीं, but being there with our parents, live through their experiences, हमें बहुत ज़्यादा sense होता है कि क्या opportunity है, क्या gaps हैं, और किस तरह से we can do something about it. And I'm very, very glad that, my parents brought this concept in me since a very young age. उन्होंने मेरे अंदर ये पर्पस डाला, इस कम्युनिटी के बारे में डाला, सोचने को, इसको ओन करने के लिए, दैट आई वॉज नेवर शाई अबाउट इट. आई नेवर लुक्ड एट इट एज अ पेन पॉइंट. आई जस्ट लुक्ड एट इट as an opportunity to do something for the greater community. जब छोटी थी तो थोड़े थोड़े projects करके ये काम करती थी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह connect here हुआ, and now we are able to do it on a global scale. Excellent. अजीमा, अभी आपने मेंशन किया ऑलरेडी कि हम लोगों का दुनिया को देखने का जो है एक परसेप्शन बिल्कुल डिफरेंट होता है. आई थिंक फ्रॉम द वेरी यंग एज हम लोग जब एज अ ब्रिज अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, एज एन इंटरप्रेटर, एज अ ट्रांसलेटर, एज अ कॉल रिसीवर, और अपनी पेरेंट टीचर मीटिंग्स में ही. तो आई थिंक कहीं ना कहीं मैं ये बात इसलिए इस पे एम्फसाइज कर रहा हूँ, बट मे बी अ लॉट ऑफ
चाइल्ड ऑफ डेफ एडल्ट्स माइट गेट टू रेजोनेट विद दिस, कि उनके अंदर कहीं ना कहीं शुरू से ही फ्रॉम अ वेरी यंग एज एक लीडरशिप क्वालिटीज जो हैं कहीं ना कहीं शार्प होनी शुरू हो जाती हैं. सो आई एम क्वाइट श्योर यू कैन रिलेट टू इट अजीमा. व्हाइल वी वर ग्रोइंग अप हमें थोड़ी बहुत जो है पिटी और वो जो एक सिंपैथी है लोग अक्सर आपको देने की कोशिश करते हैं, और एंड दिस इज समथिंग वी यूज्ड टू फ्राउन अपॉन कि यार लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, मैंने कभी चीज को उस तरह से नहीं देखा है. सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच पीपल गेट रॉन्ग अबाउट deaf adults या child of deaf adults. Tell me about your experience. एब्सोल्युटली आई एम श्योर आपके साथ भी ये हुआ है कि जब भी हम मॉल्स में जाते हैं या शादियों में जाते हैं या कोई ऐसी जगह जाते हैं जहाँ नोबडी नोज अस और हम साइन लैंग्वेज में अपने पेरेंट्स से बात कर रहे होते हैं, तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि लोगों को लगता है कि हम भी डेफ हैं. तो मैंने तो हर तरह के कमेंट्स सुने, लोगों का करना, बेचारा कहना, लोगों का कहना कि देखो बेचारे किस तरह से अकेले बाहर आए हैं, किस तरह से बातचीत कर रहे हैं. एंड आई थिंक मैंने तो उसको हमेशा फन के तौर पे लिया था कि कभी भी लोग अगर इस तरह की बात कर रहे होंगे तो मैं थोड़ी बहुत साइन लैंग्वेज करने के बाद अचानक से उनकी तरफ देखती थी और कहती थी कि जी आपने कुछ कहा. तो वो घबरा जाते थे कि यार ये तो सुन सकती है. तो ऑफ कोर्स एज अ चाइल्ड ऑफ आई मीन अभी तो आई लुक एट इट एज अ फन, बट शायद वो मेरी फ्रस्ट्रेशन भी थी, मेरा गुस्सा भी था कि घर के अंदर तो एवरीथिंग इज सो नॉर्मल. लोग मुझे आके कहते थे कि यार यू आर सो लकी, माई पेरेंट्स डेफ हैं, तुम्हें तो कभी डांट नहीं पिटती होगी. और मैं कहती थी आप घर आके देखिए अम्मी अबू कितना डांटते हैं. So I think a lot of these experiences shaped us, and you're absolutely right, Saad, like हर child of deaf adult की जिंदगी और experiences बहुत different होते हैं. I feel that your father is a deaf leader. He's a very strong personality. My parents have run, they have been part of deaf associations. उन्होंने हमें काफ़ी exposure दिया है. But I know deaf पेरेंट्स के बच्चे जो कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, जैसे आपने कहा कि दे फील सैड अबाउट इट, बैड अबाउट इट. आई हैव हैड वेरी यंग चाइल्ड ऑफ डेफ अडल्ट्स आस्किंग मी कि मेरे पेरेंट्स क्यों क्यों मेरे पेरेंट्स नहीं सुन सकते. So you've had तो such experiences. यस एब्सोल्युटली. मुझे इस स्पेशली इस फील्ड में आने के बाद, एंड बिकॉज मेरी फैमिली में बहुत सारे डेफ लोग हैं, मेरे आंट्स एंड अंकल्स, तो हमारे साथ भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं. और मैंने दूसरे भी बच्चों को अभी, बिकॉज बहुत यूथ आकर कुछ होती है जो ओन करती है और कहती है कि नहीं हम तो बहुत मज़ा आता है साइन लैंग्वेज में, कुछ शर्माती भी है यूज़ करने से. एंड अ लॉट ऑफ द टाइम दे आर बुलीड इन क्लासरूम एज वेल. मुझे एक इंस्टेंस याद है मेरी ज़िंदगी का कि मैं एक दफ़ा अपने क्लासरूम अपने फ्रेंड्स के साथ थी, एंड आई थिंक पेरेंट टीचर मीटिंग थी, किस वजह से मेरे पेरेंट्स वर देयर. एंड मैं जब अपने अम्मी अबू से साइन लैंग्वेज में बात कर रही थी तो देवर सर्टेन चिल्ड्रन इन दैट क्लासरूम जो कि हंस रहे थे और कह रहे थे कि देखो जीमा कैसे बात करती है. तो मैं तो स्ट्रांग थी कि उनकी तरफ देख के मैं कह पाई कि क्या मतलब है, तो मेरे पेरेंट्स से मैं ऐसे ही बात करती हूँ. लेकिन देयर आर लॉट ऑफ चिल्ड्रन हु डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस, या फिर किसी वजह से दे डोंट फील कंफर्टेबल. तो फिर वो अपने पेरेंट्स को पेरेंट टीचर मीटिंग में नहीं लाते हैं, अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि आप मेरे दोस्तों के सामने इशारे ना करें, एंड दे गेट बुलीड बिकॉज ऑफ इट इज़ वेल. तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसके बारे में बात करने की, अवेयरनेस क्रिएट करने की, और एक चीज़ रियलाइज़ करने की कि वी कुड हैव बोथ एक्सपीरियंसेस, गुड एंड बैड एज वेल. 100%. I totally agree with that. आई थिंक स्पेशली अगर हम बात करें अब्रॉड या वेस्टर्न सोसाइटी में, ये चीज़ बहुत अरसे की ना, मतलब चैलेंजेस तो वहाँ पर भी रहे होंगे सिमिलर, बट इंक्लूजन बहुत पहले की हो गई हुई थी. थैंक्स टू कनेक्ट हेयर लेटली यू गाइस हैव बीन डूइंग सम ग्रेट वर्क और काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो आप लोग. ब्रॉडकास्ट भी कवर करते हैं. फिर लेटली आई हैव गॉट टू नो अ लॉट ऑफ पीपल जो कि कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, मतलब सो आई नो अ लॉट ऑफ पीपल इन आर डिफ फ्रेटर्निटी, हमारे अब्बा के दोस्त और जो आगे पीछे लोग हैं, अब लेटली प्रॉपर कॉर्पोरेशंस के अंदर काम कर रहे हैं, बिल्कुल अलॉन्ग साइड ऑल द नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, राइट. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग. उसके अलावा एब्सोल्युटली. उसके अलावा अजीमा, आई थिंक ये एक और बड़ा पेनफुल एक्सपीरियंस, आई होप यू कैन रिलेट टू इट, उसी को मैं ऐड कर रहा हूँ दोबारा, कि हमें अक्सर जब लोगों को ना ये चीज़ें नॉर्मलाइज कराने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि इसको इतना पिटी नहीं करना. मेरे साथ ये चीज़ बहुत हुई, आपके साथ भी बहुत हुई होगी, कि एक गैदरिंग में हमें डाल दिया जाता था एंड दे वुड ऑलवेज आस्क अस टू, अच्छा
अगर आपने फलानी चीज कहनी हो अपने पेरेंट्स को तो आप ये कैसे कहते हैं? मतलब मेरे लिए सबसे इरिटेटिंग, जिस तरह आपने बोला है ना, मैं भी बहुत सारी चीजों को, अपनी ट्रेजेडी को कॉमेडी में कन्वर्ट कर देता था और मैंने लाइटली लेता था चीजों को। बट देयर वर इंस्टेंसेस के जिसमें आप ना काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हो कि यार 6-7 लोगों की गैदरिंग है, आप क्या मतलब मुझे बोल रहे हो कि अगर आपने ऐसे कहना हो तो कैसे कहोगे, एंड ऑल ऑफ दैट। सो यस, आई थिंक ये इस तरह के चैलेंजेस तो कहीं ना कहीं रहते हैं। सो कनेक्ट Yeah. कनेक्ट हेयर स्पेसिफिकली इस हवाले से मजीद क्या कर रहे हैं, व्हाट, सो आई सी अ लॉट ऑफ कंटेंट, मुझे पता है आप लोग इसमें आप लोगों ने डेफ इंक्लूजन पे बहुत काम किया है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट डू यू हैव इन द फ्यूचर, व्हाट डू यू हैव इन योर माइंड मूविंग फॉरवर्ड, आगे से किस तरह लेकर चलना है चीज़ों को? Absolutely. And before that, Saad, because you shared your experience, I just wanted to add another thing कि चाइल्ड ऑफ डेफ अडल्ट पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। आई डोंट थिंक कि जब तक मैंने काम शुरू किया था 2017 के अंदर मुझे पता भी था कि ये एक टर्मिनोलॉजी है। And you know, now in Pakistan, you see a lot of children. There's a page called Coda Pakistan, जो कि दो sisters ने, दो deaf parents की बेटियों ने start किया है, इरज and हिबा ने, Connecture के support से, इतने सारे लोगों के support से. So, you know, this terminology is being accepted now, but हमें तो पहले पता भी नहीं था कि ये पूरी की पूरी community है, and you know, all of our experiences are so relevant. ना सिर्फ ये, but कोडा के नाम से जो मूवी है, it's such a beautiful movie and I would recommend everyone to watch it. 100%, इनफैक्ट अभी मैंने रिसेंटली देखी एंड इट रिसीव्ड अ लॉट ऑफ एकेडमी अवार्ड्स लाइक फॉर बेस्ट सपोर्टिंग रोल और बेस्ट एक्टर। सो और वो जब जब मैं वो मूवी देख रहा था, एग्जैक्टली मैं वहीं से बात कर रहा हूँ कि वहां पर इंक्लूजन और नॉर्मलाइजेशन, मतलब दे आर वे अहेड देन अस। Absolutely. आप देखिए ना, in the Western society, you know, like parents, deaf parents want their children to be deaf so that they could relate to their experiences. And if their children is, you know, hearing, they get scared कि यार हम अपने बच्चे से relate कैसे करेंगे. And they do that because they know कि Western society में, especially in America, American Disability Act के तहत, there's so much support for the deaf community, जो कि पाकिस्तान में, you know, 9 साल पहले, 10 साल पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी. अब जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, या फिर आई रिमेंबर कोडा इंडिया की एक यू नो फाउंडर से जब मैं बात कर रही थी, तो उन्होंने इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ कही साथ, एंड आई एम श्योर कि हमारे भी घरों में ये हुआ होगा कि दिस सेट, जब भी डेफ पेरेंट्स के घर में बच्चा होता है और वो बच्चा सुन सकता है, तो वो ये नहीं कहते कि हमारा बच्चा सुन सकता है, वो कहता है हमारे घर के अंदर इंटरप्रेटर पैदा हो गया. या इट्स अ बिग थिंग एंड फॉर देम। यू नो, इट्स अ बिग थिंग फॉर देम, एंड बचपन ही से हमारे ऊपर एक लेबल लगाया जाता है कि वी आर इंटरप्रेटर्स, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. और कोई भी यू नो कोडास की मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करता. कि आई रिमेंबर जब मैं 5-6 साल की थी, तो कोई मेरी अम्मी की किसी से कोई अनबन हो गई थी, और ऑफ कोर्स उस फैमिली के लोग सुन बोल सकते थे, तो मुझे उनके लिए कॉल पर वॉइस पे बात करनी थी. एंड एज अ 5-6 ईयर ओल्ड, मैं फ़ोन पर यू नो जिस तरह अम्मी साइन लैंग्वेज गुस्से में कर रही थी, मैं कॉल पे भी गुस्से में उनसे बात कर रही थी. तो वो लोग सामने से कह रहे थे कि इतनी छोटी बच्ची इतना चीख चीख के बात करी, इस तरह से लहजा है उसका. लेकिन मैं उसे कैसे समझाऊँ कि मैं तो अपने मामा की फीलिंग्स आप तक ज़ाहिर कर रही हूँ. या फिर यू नो घर के अंदर फैमिली दावतों के अंदर, गैदरिंग्स के अंदर, आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि जब आपके वो फैमिली मेम्बर्स हैं जो इशारे नहीं इस्तेमाल करते हैं, आप हर वक्त अलर्ट रहते हैं कि आप अपने कज़न्स के साथ खेल नहीं रहे होते, आप गैदरिंग में बैठ के अपने पेरेंट्स को बता रहे होते हैं कि यार क्या बात कर रहे हैं ना हर कोई. और आपको मेक श्योर भी करना होता है, जैसे मैंने बताया, आई वाज ऑलवेज अ वेरी विजिलेंट किड. मेरे जो बड़े भाई हैं, यू नो, ही इज ऑल्सो कोडा, बट ही इज अ सॉफ्टर कोडा. लाइक वो यू नो बातों को सुन लेते हैं, समझाते हैं, प्यार से लोगों को समझाएंगे कि मेरे पेरेंट्स डेफ हैं, आप इस तरह बात करें. मैं हमेशा से बहुत ज़्यादा चार्ज लेने वाली और गुस्से वाली थी कि नहीं, आप मेरे पेरेंट्स से इस तरह नहीं बात कर सकते. तो मेरे तो यंग एजेस में मैंने बहुत डांटे भी सुनी अपने रिश्तेदारों से कि आप इतनी छोटी हैं, आपको इस तरह बात नहीं करनी चाहिए. बट फॉर मी, आई वॉज ऑलवेज देयर इंटरप्रेटर. आपको गिल्ट भी होता था कभी कभार, आई एम श्योर, कि अगर आपको पेरेंट्स ने कहा है कि यार किसी को फ़ोन कॉल कर लें, और आपका मूड नहीं है किसी को फ़ोन कॉल करने का, या आप होमवर्क कर रहे हैं और आप बिजी हैं,
आप नहीं फ़ोन कॉल कर सकते, लेकिन बिकॉज़ आपको गिल्ट होता है, मुझे गिल्ट होता था कि नहीं यार अम्मी को नानी से बात करनी है। उस वक़्त वीडियो कॉलिंग नहीं थी, व्हाट्सएप नहीं था, कुछ नहीं था, तो मुझे गिल्ट होता था कि यार मैं बाद में होमवर्क कर लूँगी, पहले मैं अम्मी की नानी से बात करवा लूँ, व्हाट इफ़ कोई बहुत ज़रूरी बात हो। तो nobody talks about these kind of pressures that the child of deaf They adult carry some faces, extra and burden for sure. Like there is no doubt they about that. carry an extra. एब्सोल्युटली आपको डिसाइड करना होता है। मैं तो लोगों को कहती हूँ कि हमें डिसाइड करना होता था कि हम अपॉइंटमेंट के लिए जाएं अपने पेरेंट्स की, या हम स्कूल जाएं। स्कूल की छुट्टी होगी क्योंकि अम्मी अब्बू को तो डॉक्टर के पास जाना है। एंड टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चन अबाउट कनेक्ट हियर, these all frustrations changed into the work that Connect Here does. डे वन ही से जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट था, मेरी जिंदगी का पेन पॉइंट था, कोडास की जिंदगी का पेन पॉइंट था, डेफ लोगों की भी जिंदगी का पेन पॉइंट था, दैट वाज कि किस तरह से हम कम्युनिकेशन बैरियर को ख़त्म करें, हम इंटरप्रिटेशन को फॉर्मलाइज करें। पाकिस्तान में 2017 तक व्हेन कनेक्चर स्टार्टेड देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स बीइंग अ प्रोफेशन। लोग जो साइन लैंग्वेज जानते थे, आप मुझ जैसे या मेरे खानदान में बहुत सारे लोगों को आती हैं, हर किसी ने इसको एज अ खिदमत लेकर चला। एंड देन जब उनकी प्रोफेशनल जॉब्स लग गई, दे लेफ्ट इंटरप्रिटेशन and nobody was joining the field because who would pay for this service? So that's the change in communication we wanted. मैं 2013 में एक साल के लिए अमेरिका में एज एन एक्सचेंज स्टूडेंट गई थी, और जब मैंने वहाँ पर देखा कि हर इवेंट के अंदर देयर साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर, उनके पास मोबाइल फ़ोन पर इंटरप्रेटर्स मौजूद है कि आपने एक बटन क्लिक किया, आप इंटरप्रेटर से कनेक्ट हो गए। तो ऑफ कोर्स मेरे जहन में तो सिर्फ यही बात आती थी कि यार अगर मेरे पेरेंट्स अमेरिका में पैदा होते, उनकी ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ होती, दे वुडेंट हैव बीन डिपेंडेंट ऑन एनी वन। And that's something we wanted to change in Pakistan as well. So we started with a Facebook page to teach sign language, right? That's it. We were 19 years old kid. मुझे था कि मेरे दोस्तों को साइन लैंग्वेज आ जाएगी तो वो लोग मेरे पेरेंट्स से बात कर पाएंगे जैसे मैं उनके पेरेंट्स से बात करती हूँ। तो साइन लैंग्वेज पेज से हमने शुरू किया, बट देन वी गॉट अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट फॉर इंटरप्रिटेशन। सो वी ट्राई टू फाइंड मोर कोडार्स लाइक माई सेल्फ जिन्हें साइन लैंग्वेज आती है, और उन्हें हमने असाइनमेंट्स देना शुरू कर दिए कि आप फला जगह जाकर इंटरप्रेट करें एंड यू विल गेट पेड फॉर दिस सर्विस। सो दैट ब्रॉट अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। जो पेरेंट्स, इवन डेफ पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते थे कि साइन लैंग्वेज पे इतना तवज्जो ना दो, सिर्फ हमारे लिए दो, कम्युनिटी के लिए ना दो, क्योंकि इसमें फ़ायदा नहीं है। दोज पेरेंट्स स्टार्टेड टेलिंग देयर किड्स कि यार साइन लैंग्वेज सीखो, ये तो जॉब है, आप पार्ट टाइम कर सकते हो। तो अ लॉट ऑफ कॉन्वर्जेशन चेंज्ड बिकॉज ऑफ कनेक्ट हियर। वी इंट्रोड्यूस्ड आवर वर्चुअल साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन ऐप, as you know, the first intervention for the deaf people in the country कि अगर वो जॉब्स में लग रहे हैं, जैसे आपने बात की, और वो अपने मैनेजर से बात नहीं कर पाते हैं, सो दे हैव अ कनेक्टेड ऐप ऑन देयर फोन्स दैट दे यूज टू कनेक्ट विद एन ऑनलाइन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर। हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बैंक्स के अंदर इंटरप्रिटेशन ऐप लगाई कि अगर कोई वॉक इन डेफ कस्टमर है तो मैनेजर अब उससे बात कर पा रहा है बिकॉज देयर इज एन ऑनलाइन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर अवेलेबल। एंड मोर देन दैट, ऑनेस्टली पूरे पाकिस्तान में 5 मिलियन यानी 50 लाख लोग प्रोफाउंडली डेफ हैं, and more than 90% of them cannot read and rely on sign language. It's a huge percentage, it's a huge number, और ये सब सिर्फ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में नहीं है, ये हर जगह है। So the connected application actually allows us to give similar level of service to someone who's living in Sawat, Skardu, someone living in Gujranwala, in Rahim Yar Khan. हमारे पास यूजर्स हर जगह के मौजूद हैं, एंड दैट हैज़ रियली हेल्प्ड अस टू रीच एवरीवन। हम अवेयरनेस बहुत क्रिएट करते हैं। वी हैव स्टार्टेड डूइंग साइन लैंग्वेज क्लासेस। हमने 5,000 से ज़्यादा लोगों को साइन लैंग्वेज सिखाई हैं, जिसके अंदर कॉर्पोरेट प्रोफेशनल से लेकर प्रोफेशनल इंटरप्रेटर्स हैं हमारे पास। वी डू जॉब्स, सो हम जॉब फेयर्स कराते हैं पर्सनस विद डिसेबिलिटी के लिए, सो नॉट ओनली डेफ बट पीपल विद विजुअल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज एज वेल। वी वर्क फॉर देयर जॉब प्लेसमेंट्स, एंड देन नाउ we're in the AI space as well. So we're trying to see कि कौन कौन सी ऐसी कम्युनिकेशंस हैं या फिर
डिजास्टर नोटिफिकेशंस, कोई भी ऐसी चीज जो कि डेफ लोगों तक नहीं पहुंच रही और ह्यूमन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स हर वक्त अवेलेबल नहीं हो सकते, हाउ कैन वी यूज एआई इनटू दैट? सो वी हैव इंट्रोड्यूस्ड Scylla. Scylla is an AI agent that understands sign language and responds back in sign language. And we have already deployed it at Pakistan Asan Khidmat Center in Islamabad के कोई भी deaf person है तो वो वहाँ जाकर information ले सकता है नादरा के बारे में, passport के बारे में, driving हर चीज़ के बारे में. तो these are some of the things that we passionately do. Of course, it's not just me. We have a lot of codas, a lot of deaf people, a lot of passionate individuals जो कि इस काम को कर रहे हैं. My co-founder Arham, he doesn't come from a background of disability or having deaf parents, but he has been passionately doing it for the last 9 years. There are other team members as well. So it's a movement, right? You are a part of this movement, Saad, because you have been working for the deaf people for so long, and then you wrote a book. You're trying कि वो book deaf लोगों तक पहुंचे. You're doing these podcasts. So I think हम सब अपना role अब play कर रहे हैं society में कि we can reach more people in the community and create a lot more awareness. 100%. Actually, reason भी मेरा यही था. So मेरा जो channel है, I usually talk about this awakening, I talk about purpose, I talk about awakening. So the goal is to be a vessel of goodness where a lot of people can relate to you, so that you can you can spread goodness and share messages of encouragement. अब हमारे एंड से जो बात हुई है, आई थिंक जिस तरह आपने अपने चैलेंजेस शेयर किए, मैंने अपने चैलेंजेस शेयर किए, 10 साल पहले बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो है वी केप्ट इट टू आवरसेल्फ, राइट? तब इतना आसान नहीं था, एंड इतनी ज़्यादा जो है अब तब मतलब रिलेट करना किसी के साथ या जाकर ये किसी को बताना एक बहुत बड़ा चैलेंज था उस टाइम पर. बट आई होप के वी गेट आवर मैसेज अक्रॉस वेरी वेल, तो बहुत सारे लोग जो है इसके साथ रिलेट भी कर लें. बट ऑन अ लाइटर नोट एज वेल, Azima, what are the perks of being a coder? I hope you can relate to it. Parent teacher meeting पे हमने इसका Absolutely. पेरेंट टीचर मीटिंग पे हमने इसका बहुत फायदा उठाया है. साद ऑनेस्टली लाइक मुझे ब्लेम बहुत किया गया है क्लासरूम में, बिकॉज लाइक मैं बहुत ज़्यादा मस्ती करती थी क्लास में, एंड पेरेंट टीचर मीटिंग में हमेशा मेरी शिकायतें लगाई जा रही होती थी, और ऑफ कोर्स मैं उसका फ़ायदा उठा सकती थी बट मैं नहीं उठाती थी बिकॉज मेरी अम्मी चिल थी. अम्मी कहती थी इसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, बस इतना मुझे कह रहे. तो मुझे याद है कि मेरी तो पेरेंट टीचर मीटिंग में मैं सच में इंटरप्रेट सही करती थी और अम्मी सामने से हंस रही होती थी कि खैर हो गई, कोई बात नहीं है. तो उस पर भी मेरी टीचर को लगता था कि मैं गलत कह रही हूँ, और फिर मुझे आई यूज टू गेट इन ट्रबल बिकॉज ऑफ दैट. बट यानी आप सही कह रहे हैं कि बहुत लोग इसका फायदा फायदा भी उठाते उठाते हैं हैं. कि जो बात होती है उसको ट्रांसलेट डिफरेंटली करते हैं, बट फायदे भी बहुत हैं. आई थिंक अगर डू यू हैव अ सिबलिंग? या So I'm sure, listen, I have an elder brother, so a lot of the times the फायदा is कि we are able to talk about a lot of things without our parents knowing कि क्या बात हो रही है. या फिर मुझे याद है कि मैं एक दफ़ा रिसेंटली ड्राइव कर रही थी और गाड़ी के अंदर मेरे दोस्त भी मौजूद थे और मेरी अम्मी भी मौजूद थी, और हम लोग हर तरह की बातें कर रहे थे. तो मेरे दोस्त ने ना अचानक से कहा कि अजीमा आंटी बैठी हुई हैं, और फिर थोड़ी देर बाद वो कहता है कि अच्छा आंटी को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा हम क्या बातें कर रहे हैं. यार ये तो उन्हीं की आई कोई कैन आदत है रिलेट इस टू इट. चीज की, बट हमारी तो आदत है कि हम बहुत चीजों की बातें, सीक्रेट्स की बातें कर लेते हैं, और हमें पता है हमारे पेरेंट्स को थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि लिप रीडिंग भी कर लेते हैं या उन्हें झिझक पड़ जाती है. बट ओवरऑल आई थिंक बहुत ज़्यादा इसके मज़े भी हैं, फ़ायदे भी हैं. आप अपने सिबलिंग से बहुत सारी बातें कर सकते हैं विदाउट योर पेरेंट्स नोइंग. अग्रीड अग्रीड. इसका मैंने भी काफ़ी फ़ायदा उठाया है. हम आपस में बहन भाई ये वाली चीज़ काफ़ी करते हैं. लेकिन देयर इज दिस वन थिंग पीपल ऑफन गेट रॉन्ग अबाउट डेफ एडल्ट्स. दे आर एक्चुअली वेरी स्मार्ट. ऐसा कुछ कह रहा हूँ, मेरे मतलब मेरे पेरेंट्स के का तो मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि वो फौरन से जो है ना, उनको पता चल जाता है कि ओके यू आर मिसिंग अप, ये बात कुछ और है और तुम मुझे बता कुछ रहे हो. सो दे हैव दिस रियली, इनकी सेंसेस कुछ और चीज़ों में बहुत तेज़ काम करती हैं. यार एक बहुत फनी चीज़ ये हुई थी. सो माई सिस्टर इन लॉ, माई ब्रदर्स वाइफ, आई रिमेंबर हम लोग सब डिनर टेबल पे बैठ के बातें कर रहे थे और अम्मी फ्रिज खोल रही थी, फ्रिज बंद कर रही हैं, और अम्मी ने अचानक हमारी तरफ देखा एंड शी स्टार्टेड सेइंग द सेम थिंग जिसके बारे में हम बात कर रहे थे. तो मेरी भाभी उस वक्त कहती है कि
नहीं, एक दिन होगा कि आपकी अम्मी आपको बताएँगी कि मैं तो हमेशा से सुन सकती थी, मैं आप लोग को ट्रिक कर रही हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि इन्हें पता चल जाता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं? तो इनकी सिक्स्थ सेंस बहुत बहुत ज़्यादा तेज होते हैं। स्ट्रॉन्ग होती हैं। एग्री। 100%। आई थिंक कभी-कभार अम्मी और मैं अगर मॉल में हों और दूर कोई डेफ लोग बैठे हुए हैं, आपस में साइन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो मुझे अपनी अम्मी को कहना पड़ता है कि प्लीज़ ना देखें। बिकॉज़ डेफ लोगों के लिए ये भी बड़ा आसान है कि कोई दूर बैठ के भी साइन लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो वो देख के बता सकते हैं कि क्या बातें हो रही हैं। सारी गॉसिप्स का पता होता है उनका। एक्चुअली मेरा नेक्स्ट पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है, मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग द डेफोडिल्स, थिंग्स दैट पीपल यूजुअली गेट रॉन्ग अबाउट दीज डेफोडिल्स, कि उनको लगता है कि मे बी द रीज़न व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस अप, लाइक आई जस्ट मेंशन कि मैं रिसेंटली मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला जो कि प्रॉपर कॉर्पोरेट जॉब्स कर रहे हैं, जस्ट लाइक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, बैंक्स में और बाकी और कॉर्पोरेशंस में भी। सो लोगों को शायद लगता है कि मे बी दे आर डिप्राइव्ड, यस दे आर इन वन वे, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग, बट इट डज नॉट मेक देम एनी लेसर ह्यूमन बीइंग, और कुछ इनमें कोई ये डिप्राइव नहीं है ये किसी ऐसी चीज़ से कि नॉर्मल लोगों के साथ ऑपरेट नहीं कर सकते या कुछ। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट पीपल गेट रॉन्ग, कि शायद इनमें कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका स्किल सेट बहुत टॉप लेवल का होता है, वो सुन बोल नहीं सकते, बट उनके पास नॉर्मल जो है स्किल सेट बड़े ज़बरदस्त होते हैं, सो दैट दे कैन फंक्शन इन द नॉर्मल वर्ल्ड, और जो बाकी लोगों की तरह जो है नॉर्मली वो ऑपरेट कर सकते हैं। वो, आप इसको किस तरह से देखती हैं? आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बहुत दफ़ा लोग कहते हैं कि डेफ लोग गुस्से बहुत जल्दी हो जाते हैं। And for me, for myself, it is like yes, but आप खुद सोचें कि अगर आप एक फॉरेन कंट्री जाते हैं जहाँ पर हर कोई एक दूसरी ज़बान में बातचीत कर रहा है और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि वो लोग क्या बात करें, और आप वहाँ पे रोज़ाना सो रहे हैं, उठ रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, एक पॉइंट आएगा आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि मुझे कोई सोशल कनेक्शन ही नहीं मिल रहा, मुझे बात नहीं समझ आ रही है। और आपको भी बहुत दफ़ा ऐसा लगेगा कि जो लोग दूसरी ज़बान में एक-दूसरे से बात करके हँस रहे हैं, वो मेरे बारे में बात करके हँस रहे हैं। हमारे साथ होता है कि अगर हम किसी को देख रहे हैं, हमारी साइट में कोई है जो कि छुपके से कान में बात कर रहा है, तो हमें बहुत दफ़ा लगता है कि वो बंदे मेरे बारे में बात करें। इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन फिनोमेना। But we don't understand that deaf people live through that every single day of their life because they use a different language, which is sign language. They can't hear you. And of course, they're frustrated because they're sitting in, ghar ki dawatein where they're not included. They are in office setting where people are laughing and, becoming friends or plans bana rahe hain, and they feel isolated, they feel left out. And any human who is made to feel left out for so long will get frustrated. The moment you understand sign language, the moment you try to talk to them, आपको खुद realize हो जाएगा कि वो frustrated नहीं है, वो human connection से deprived है. And we have the onus and responsibility of changing that. Agreed, 100%. So, Azima, at what point you realized, or what was that instance जिसमें आपको लगा कि you have found your calling, और आपको जो है you need to pursue this thing? Like, was there any particular instant? So I always say that Allah put this in my heart 100% कि जब मैंने वो डिसीजन लिया कि बस यही करना है, लेकिन रिसेंटली मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर रिफ्लेक्ट कर रही थी. Of course, there's so many instances of my life, my experience in US, so many things that made me think about it. But एक चीज़ साथ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा टच की थी was, I remember it was 2014. I was 16 years old at that time, and I went to a deaf school in Karachi with my mother as one of the speakers. और मैंने एक इवेंट रखाया था करियर काउंसलिंग का फॉर डेफ स्टूडेंट्स हु वर सेम एज एज मी, यानी वो लोग इंटर के अंदर थे, सेम एज एज मी. तो मैंने उनके लिए जब वो सेशन रखवाया करियर काउंसलिंग का, एंड आई हैड माई मदर हु वाज अ बैंकर फॉर 33 years एज वन ऑफ द स्पीकर्स. खैर जब सेशन शुरू किया तो ऑफ कोर्स एंगेजमेंट के लिए आई आस्क्ड ऑल द डेफ स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम इन साइन लैंग्वेज. आई सेड कि आप सबको बड़े होकर क्या जॉब करनी है. And every single child in the class said that
we are going to work at KFC. Yeah, And because of there was no other course, you place. know, I because I know a lot of absolutely. people And in of my course, family जो कि उनके साथ भी ये disability 10 साल पहले ना 10-15 साल पहले I think there was this only one place KFC जिसमें लोग जाके एक बहुत ही एवरेज सा जॉब करते थे. There was no other place. you know, and we have so much appreciation for KFC as a brand who has created so much awareness about deaf people, and they're still working. But of course, they as a brand also want कि community के पास और opportunity हो. किसी के पास ये opportunity नहीं थी other than this one brand in Pakistan that used to hire deaf people. And I think when I heard that, that really, you know, made me feel sad, made me feel upset कि ये क्यों है. And when I, you know, introduced them to my mother कि, you know, my mom's a banker, the students started asking my mom कि आप क्या काम करती हैं, आप चाय देती हैं ऑफिस में, आप प्रिंटिंग करती हैं. एंड देन माई मॉम वाज लाइक नो, यू नो, मैंने डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पे जॉब किया था. नाउ आई मैनेज द एंटायर आईटी एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को, मैं सारी काम करती हूँ. दे वर शॉक्ड. And I think that really changed me as a child and made me think about what more can I do for this community. And then of course it took few years. I went to a lot of deaf schools. मैंने वहाँ जाकर discussion की. तो they saw me as a passionate child. They were like आप आकर volunteer करें. But मैं जो करना चाहती थी that was कि professionals जब deaf students graduate हो जाते हैं उनके उसके बाद उनके लिए क्या opportunity है. So then, Alhamdulillah, Allah brought it in my heart and I started working on it. But I think that was one of the most defining moments for me. So adding on to that, Azima, जब आपने ये start किया, what was the biggest challenge you faced in the initial times? The biggest challenge was people just not understanding, you know, why am I working on this? Everyone said कि ये कितनी niche problem है, पाकिस्तान में से और बड़े ज़्यादा problems exist करते हैं. So, And people, Azima, sorry to cut you off. मैं इसको थोड़ी understanding लेना चाह रहा हूँ. Initially, when you wanted to put things in place, who did you reach out to? Like on an operational level, inclusion के लिए आपने government body में से या किसी और को corporate sector में से आपने reach out सबसे पहले किसको किया to get it incorporated? yeah, I mean, Saad, I don't come from a business background. I was at IBA at that time. So सबसे पहले तो मैंने इसके बारे में अपने क्लासरूम के अंदर I was taking an entrepreneurship की क्लास. तो वहाँ पर सबसे पहली दफ़ा मैंने इसके बारे में जिक्र किया. एंड आई थॉट कि जब मैं डिस्कस करूँगी तो लोग कहेंगे कि यानी ये क्या चीज़ है एंड वी डोंट नो अबाउट इट. बट एक्चुअली दे वर सो सपोर्टिव ऑफ इट. एंड सबसे ज़्यादा हैरानगी की बात ये थी कि मैं पूरी प्रेजेंटेशन में कह रही थी कि my parents are deaf and I am their normal daughter. And it was one of my, you know, classmates that made me realize. She said कि, you know, उन्होंने तुम्हें बड़ा किया है. They are more normal than you are. And you need to change that terminology. They are deaf and you are hearing because you can hear. So I think जब वो support मिला तो उसके बाद I did not know where to go. So I reached out to my friends. Of course मेरी family में बहुत लोगों को sign language आती थी. But from an operational perspective, I thought about people who could help me in this journey. So someone with a business background, business sense. So one of my friends, Areej, who was one of the co-founding members, her dad had a hospital. So she came from that, you know, Mehman family background. So I approached her and I approached Arham, my other co-founder, because Arham का हमेशा से IT में बहुत strong grip था और मुझे day one से ना AI बनाना था जो कि sign language को convert कर सके. तो I reached out to both of them and I shared my idea with them. We all were 19-year-old kids. फिर अरीज ने उस वक्त कहा कि नेस्ट आयो के नाम से एक इंक्यूबेटर है जो कि टेक आइडियाज़ और बिजनेस आइडियाज़ को इंक्यूबेट करता है. एंड शी टुक अस देयर एंड व्हेन वी वेंट देयर ऑनेस्टली मुझे पता था पिच क्या होती है क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी में सीखा था. बट आई डिड नॉट नो कि एग्जैक्टली बात क्या करनी है. And over there, I met the person who changed my life and changed the trajectory for the work we're doing. Jahan Ara, who's a very popular figure in the IT industry. We met Jahan, like out of nowhere, हमें उनने कहा कि आप जहाँ से मिल लें. And Jahan को 7 minutes के अंदर मैंने सिर्फ बताया है कि मैं करना क्या चाहती हूँ. And her response was कि
ठीक है, हमारी जगह अवेलेबल है, आप यूज़ करना इस्तेमाल कर लें, जो आपने करना है यू डू इट, वी विल सपोर्ट यू। एंड ऑनेस्टली साद आई वेंट देयर जस्ट फॉर मेंटोरशिप। लेकिन किसी का ये कहना कि हमारी जगह मौजूद है, जब हमने वीडियोस बनाई, यू वुड अंडरस्टैंड इट, स्टार्टिंग समथिंग यू नीड कैमराज, यू नीड एसेट्स। उनके पास सब कुछ मौजूद था, उनके पास स्टूडियो था, उनके पास कैमरास थे, और उन्होंने कहा आप इस्तेमाल कर लें। तो आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट सपोर्ट वी रिसीव्ड, एंड देन स्लोली एंड gradually we did like business partnerships, we reached out to companies who supported us, and now the government is also supporting us. Took 9 years for everything to happen, but I think that first level was that confidence you get from someone who has industry connections and the right co-founders. And challenge yahi tha, of course, ke लोग कहते थे कि इतना नीश प्रॉब्लम है इन द टेक इंडस्ट्री, दे लुक्ड एट इट, कितना छोटा सा प्रॉब्लम है, इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ यूनिकॉर्न कंपनी, बट इट वाज नेवर intended to be a unicorn company or with that goal. The goal was that we wanted to change things in Pakistan and we wanted to be sustainable in doing that. Another challenge, of course, was our age. कि लोग कहते थे इतने छोटे हैं, पैशनेट है, सो नोबडी न्यू कि हम इसको सीरियसली लेंगे. एंड आई थिंक ऑनेस्टली इट्स आवर एक्शंस एंड द सपोर्ट ऑफ अल्लाह दैट proved it to people that now there are so many individuals who are माशाल्लाह. part of this journey. The same judges of, I remember kal mujhe ek call aayi hai from one of the tech industry leaders who was also one of the people who was like, oh, this is a great idea, how would you guys scale it, kya hoga? And yesterday he called me asking for my services. So I think your action proves a lot of the change you can bring. Now we all know there is this thing in place called Connect Here. So if there is anything related to sign language or you want your content to get interpreted, there is this one place. मेरा ख्याल है 8-10 साल पहले हम ये चीज़ सोच भी नहीं सकते थे. So more power to you guys. I think you guys have done a fabulous work. But there is this another thing which I want to know. Azima, ये सारी बातें तो ठीक हैं, ज़बरदस्त था, अल्लाह ने मदद भी की, सारा कुछ हुआ. Monetarily, how did you make it work? And where does Connect Here stand right now, if you want to share? So I think it's a social entrepreneurship kind of a thing, right? So how do you manage things monetarily? Absolutely. So for us, we were always registered as a private limited company. We are just now also registered as a not-for-profit. However, for the most part of our journey, it was actually our business partners, our corporate partners who supported us. So हम उन्हें अपनी हर सर्विस के अगेंस्ट चार्ज करते थे, कनेक्ट हियर एप्लीकेशन के लाइसेंस के लिए चार्ज करते थे, and it was the corporates we worked with and their payment for our services, their acknowledgement for our services that helped us to sustain ourselves and run a team. We have won certain grants as well, certain awards as well. And now, we're working with the government, so that's why we have registered our not-for-profit as well. But that has always been our goal कि जो भी हम काम करें वो sustainable हो साथ, because we didn't want कि we get funding to do something and जब funding चली जाए तो काम खत्म हो जाए. We knew the mission is here to stay, and we're very grateful of everyone, especially the corporate partners and the government who are supporting us and making it happen. Perfect. So Azima, हमने बहुत सारे पॉइंट्स बड़े अच्छे से कवर किए हैं. आई जस्ट मेंशन्ड अर्लियर एज वेल कि मैं अपने चैनल पे, मेरी इंटेंशन ये होती है, कोशिश ये होती है कि टू बी अ वेसल ऑफ गुडनेस. आई ट्राई टू शेयर मैसेजेस ऑफ इंकरेजमेंट, ऑफ गुडनेस, फेथ की बात करता हूँ, इन्फ्लुएंस की बात करता हूँ, लुकिंग एट सफरिंग विद द राइट अप्रोच या विद द राइट पर्सपेक्टिव. ये एक बहुत की हाईलाइटर होता है मेरी कंटेंट का, बड़ा एक मेन पार्ट है मेरे कंटेंट का. और ये पॉडकास्ट करने का भी, मीटिंग करने का भी मेरा यही पर्पस था, बिकॉज यू जस्ट मेंशन्ड कि देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर जो कि मेंटली स्ट्रगल करते हैं इस चीज़ के साथ. मे बी दे आर नॉट एबल टू मेक पीस विद इट वेरी इजीली द वे वी डिड. चैलेंजेस तो हमारे लिए भी रहे होंगे. सो मेरी कोशिश है कि जो भी हमने कंटेंट रिकॉर्ड किया है, जो आपने अपनी परसेप्शन शेयर किया है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, लोग उसको यूज़ करें एंड दे सेट देयर परसेप्शन, और अपनी इस एडवर्सिटी को या सफरिंग को एक फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल देखें, एंड मे बी दे कैन ऑल्सो बिकम द नेक्स्ट अजीमा in the future, or they do great things. So is there any last message that you would like to give to them
if anyone, if to all the codas out there. Absolutely. To all the Kodas out there, it's not only becoming a Zima, it's becoming Saad, it's becoming your elder siblings, it's becoming your parents. And my message to all of you is that look out for support system. You're not alone in this journey, not at all. You don't have to be burdenized with the fact that you are the only voice of your parents. And also reach out to have discussions around it. Understand that your parents are also parents for the first time, and they have lesser resources as compared to a hearing parent. Acknowledge that, help them in this journey as well. Give authority of your life to your parents. बहुत दफ़ा ये होता है कि हमारे कोडाज पेरेंट्स की जगह अपने रिश्तेदारों पर ज़्यादा भरोसा करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं, डिसीजन हमारे चाचा चाचा लेंगे, लेंगे। हमारी फूफो लेगी। You need to give your parents the chance to take decisions for you, the final decisions for you, because वो हमेशा आपकी बेहतरी के लिए सोचेंगे. And reach out if you're struggling with anything. And my message to the wider audience, Saad, like everyone who's listening to this podcast, if you have young children or if you have siblings, आपकी फैमिली में कोई भी शायद डेफ ना हो, बट फिर भी प्लीज़ आप ये एम्पैथी अपने अंदर रखें कि डेफ लोग बिल्कुल नॉर्मल हैं, हमारी तरह हैं, बस वो सुन नहीं सकते। हम सबके अंदर लिमिटेशन है। मैं क्लियरली देख नहीं सकती, इसलिए मैं ग्लासेस पहनती हूँ। लेकिन किसी ने मुझे ज़िंदगी में इस बारे में बुरा नहीं फील कराया है कि तुम ग्लासेस पहनती हो तो तुम कमतर हो या लिमिटेड हो। वी ऑल आर लिमिटेड इन सम वे एंड इट्स गिफ्टेड बाय गॉड। आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों के अंदर, अपनी सोसाइटी में इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें। अगर दो लोगों को हाथ की ज़बान से बात करते हुए देखें तो आप उनका मजाक ना उड़ाएं, आप समझें कि ये इशारे की ज़बान यानी साइन लैंग्वेज है। अगर डेफ लोग बात करते हुए कोई आवाज़ निकालते हैं तो अंडरस्टैंड करें कि उन्हें नहीं पता, उन्हें नहीं सुनाई दे रहा कि उनकी एक आवाज़ है जो कि निकल रही है जब वो बात कर रहे हैं। वो आवाज़ का आप मजाक ना उड़ाएं, उसे भी एक्नॉलेज करें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, इशारे की ज़बान सीखें। Yeah. It is such a beautiful language. I think sign language is so beautiful. Yeah. And I think साथ हमें सबको 2 साइंस तो सिखाने चाहिए जो कि वो इस्तेमाल करें। मैं उनको अल्फाबेट सिखा देता हूँ। सो ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है। अच्छा, सो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये रहा, ऑन अ लाइटर नोट, मुझे 2 हाथ वाली साइन लैंग्वेज आती थी, सो देयर आर 2 डिफरेंट अल्फाबेट्स। या मुझे 2 हाथ वाली आती थी पहले, तो फिर बहुत अरसा बाद मेरे पास कोई पम्फलेट आया या क्या था, वालिद साहब ने दिया, तो उस पर मुझे पता चला कि ये तो एडवांस हो गई हुई है बहुत। और ये हर जगह यही चल रही थी, मतलब KFC में भी यही चल रही थी और आगे पीछे भी। तो मुझे फिर सीखना पड़ा कि नहीं, अब ए ये होता है, बी ये होता है, सी डी। बाकी आपने अगर कुछ बोलना तो आप बता दें। आप लोग प्लीज YouTube पे जाएं, सर्च अल्फाबेट्स इन साइन लैंग्वेज। कुछ डेफ लोगों ने वीडियोस बनाई है, कनेक्टर की कुछ वीडियोस हैं, वॉच दैट। आई थिंक अगर किसी डेफ पर्सन से मिले तो उनसे आपने पूछना है हाउ आर यू, तो इट्स लाइक हाउ एंड देन यू, यानी आप कैसे हैं। एंड वो आपको सामने से बताएंगे कि गुड, बैड, सो एंड दूसरा Okay. जो हमेशा हम सबको सिखाते हैं, हाँ ओके, सो Okay. and love का sign, तो this is love in sign language. It's literally I love you. This is sorry. This is sorry. ये कुछ साइंस हैं, उसके अलावा हम साइन लैंग्वेज क्लासेस भी कराते हैं, हमारी वीडियोस भी ऑनलाइन। सो लर्न साइन लैंग्वेज एंड इंटरेक्ट विद पीपल। आई थिंक दैट्स द मेन थिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अजीमा, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। और मेरी दुआ है अल्लाह मियाँ से भी कि वी नीड मोर पीपल लाइक यू, और हम जो इस तरह के काम करते हैं, बिकॉज यूर एन इंस्पिरेशन। I believe a lot of people can look up to you and they can relate a lot to what you just said. So more power to you. May Allah bless you. Thank you so much. More power to you as well. Thank you for doing this. Thank you so much. Thank you so much.